Hello friends, welcome to AI Insiders. My dear friends, in this video we'll explore the key techniques for creating engaging and high quality videos. Whether you are a beginner or an experienced creator, these tips will help you boost audience retention and make your content stand out. Let's dive in. AI इंसाइडर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने की महत्वपूर्ण तकनीकों की खोज करेंगे, चाहे आप एक शुरुआती यूट्यूबर हों या अनुभवी क्रिएटर। ये टिप्स आपकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने और आपके कंटेंट को अलग बनाने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार झा आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक टॉपिक को लेकर के, हाउ टू क्रिएट एंगेजिंग वीडियो एंड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो इफ यू लर्न दिस। सो आज हम खास करके बात करेंगे कुछ खास मुद्दों पर। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये ट्रेनिंग सेशन है ऑन वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग, एंड जस्ट टाइटल ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन इज मास्टरिंग वीडियो क्रिएशन, ए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन कैनवा, वॉइस रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट मूवी मेकर प्रो. So this training session, I think it will be divided into two, part 1 and part 2. So part 1 today I am going to deal, and the duration for this workshop is 1 day in fact, and that is 6 hours. So and I would like to tell you that target audience for this workshop is educators looking to create instructional videos for online teaching, content creators wanting to enhance their video production skills, students interested in multimedia projects and presentations, professionals who need to create engaging videos for marketing, training or business communication. And then of course there must be an objective for any kind of workshop. So for this workshop, objective is like this. This training session is designed to equip participants with the knowledge and skills required to create, edit and enhance videos effectively by leveraging Canva for visual design, which we are going to learn today, a voice recording app for narration, screen recording. All these things we will be learning today. For so this screen recording is for what? For demonstrations or taking any online classes or like that. And then at last on another day, any other day, part 2 of this video, we will be learning Microsoft Movie Maker Pro for final editing. And here participants, that means you, will be able to produce high quality videos for various purposes. So just I would like to give you the session breakdown. So session 1 is introduction to video creation, that is for 30 minutes. The importance of video content and in education, business and social media we will be discussing. I think most of you are aware about this, so maybe we can cut short this timing also, and yeah. Next point is overview of the video creation process from ideation to publishing. So किस तरीके से हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, आइडिया आता है, विचार आता है मन में, फिर उसको किस तरीके से हम उस विचार को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, और फिर फाइनली हम पब्लिश करते हैं। वहाँ तक की जो यात्रा है वो दिखाई जाएगी। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू की टूल्स लाइक कैनवा, दैट इज फॉर ग्राफिक डिजाइन. And of course here we can use this Canva for image assets, and with the image assets we can prepare video. And then voice recording apps like for audio narration, and then screen recording software with the help of which we can do the tutorials, demos, etc. And here we will be using OBS, which is free, and then Microsoft Movie Maker Pro editing and final production. So this pro version you need to pay. So if at all you want trimming and other things and other facilities, then you need to purchase this Microsoft Movie Maker Pro from Microsoft.
or else you can use free version which is available, but there you would not be able to do so many things. Fine. The next point is understanding the importance of storytelling, pacing, and engagement in video creation. So this was the session 1, and just I'm giving you highlight of all the sessions. So session 2, designing visual content with Canva. This is for 1 hour, and here the first point is navigating Canva's interface and understanding its key features. Creating engaging visuals like thumbnails, slides, infographics, and social media templates. The next point is utilizing Canva's animation and transition effects for dynamic content. And best practices for choosing colors, fonts, and layouts for professional designs. And then at last, in this session 2, you will be learning how to export. I mean exporting and integrating Canva visuals into videos. So this was session 2, and then during session 3 we will be learning recording voice narration. And I think here the time I have given 45 minutes. This is for beginners in fact, but as my dear friends, most of you are aware about this, so we can escape. So little bit we will be discussing here, and we will escape. It will not take 45 minutes. So, but I would like to mention what are the things which one should cover if it is for beginners. So first point is introduction to different voice recording apps like Audacity for PC, Easy Voice Recorder for mobile, and since I am having iPhone, so I am using another voice recorder that I will share with you. And then voice memos, this is for iOS devices, that is iPhones. Then setting up a noise-free environment for high-quality recordings. Understanding microphone types and their impact on audio quality, techniques for voice modulation, clarity and articulation, editing and enhancing audio, noise reduction, trimming and adding effects, and then finally exporting audio files for integration into वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. हियर हमको क्या करना होगा कि MP3 फाइल में कन्वर्ट करके ऑडियो फाइल MP3 फॉर्मेट में फिर उसको हम करेंगे. Then next session 4 will be also 45 minutes, and this is related to screen recording for tutorials and demonstrations. Here we will be using OBS. So introduction to screen recording tools, OBS Studio, advanced user, this is for advanced users, and then Loom for quick online tutorials, Xbox, Game Bar. These are the things we will be learning if it is required. Then next point, best practices for recording screen-based tutorials, then adjusting resolution and frame rate for high-quality screen recordings, then integrating voice over narration with screen recordings, exporting and preparing screen recordings for video editing. Then at last, session 5 will be dealing, we will have hands-on experience, and this session is actually practical session actually, and this is for 2 hours. So here you will be learning video editing and Microsoft Movie Maker Pro, and I will be there to help you out. So the main points under this session which we are going to cover and we are going to practice is understanding the interface and tools of Microsoft Movie Maker Pro, importing video clips, images, audio and animations, then basic editing techniques like trimming, cutting, merging and transitions, and then adding background music, voice-over synchronization and sound effects. Then next point is enhancing video with text overlays, subtitles and captions. This depends, my dear friends. ये निर्भर करता है कि आप कितना इंटरेस्टेड है, कितना कुछ सीखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको करेंगे. अगर इसमें से कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि सीखना जरूरी नहीं है तो उसको हम नहीं सीखेंगे. कुछ चीज़ें ऐसी भी लग सकती हैं कि आपको लगे कि हाँ ये तो हम जानते हैं, तो फिर उसको भी हम स्किप कर सकते हैं. अदरवाइज इट विल बी टोटली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. दिस सेशन विल बी practical session. Then we'll learn enhancing video with text overlays, subtitles and captions, adjusting brightness, contrast and color correction, exporting the final project in various formats for different platforms like YouTube, social media, presentations, etc. Then at last we'll be having session 6, that is hands-on practice and question and answer session. This will be again for 1 hour, and here participants will create a short video project using the learned tools.
Individual feedback and troubleshooting of common issues will be there, and then sharing of participant projects and constructive peer review will be there. So you are going to review each other. Okay, and then question answer session for clarification and advanced tips will be there. And here I would like to clarify your doubts, and at the same time I would like to learn from you people also, because you are also having some kind of unique knowledge about this video creation. So we will be learning from each other. Fine. Then last but not least, the guidance on next steps and additional resources for continued learning will be there. And for this training session, as per design of training, DOPT, my dear friends, I have prepared as per design of training, and that is DOPT guidelines. So what are the training requirements? What we are going to have with us? So that is also there, and I would like to let you know. So first, you need to have laptops with Microsoft Movie Maker Pro installed. If you are not having a Pro version, you are not going to purchase. If you need not to purchase, then you have to use free version. Then here, once again, I will tell you that in free version, there are a lot of features which are not available. Fine. Thank you. So it depends upon you. As per your wish, you can go for this. Then again, Canva accounts, and this is again free, and paid version is also there. Then you need to have voice recording apps installed on your phones or laptops. Then screen recording software installed on devices. And here I would request all of you to download the OBS. Okay, yeah, that is free. Then we have to ensure that a stable internet connection. Then we have to ensure that a stable internet connection for downloading assets and using online tools, it should be there, it should be ensured. And then if we have headphones with microphones for voice recording, that will be better. And then at last, I would like to tell you that what are the expected outcomes. So by the end of this session, participants will, that means you will be proficient in designing visually engaging content using Canva, record and edit high-quality voice narrations for videos, capture effective screen recordings for tutorials, presentations or demonstrations. You will be able to edit and produce professional quality videos using Microsoft Movie Maker Pro, and also you will be able to understand the best practices for video storytelling, production and publishing. So, my dear friends, I hope this training will provide a comprehensive step-by-step approach to video creation and editing, making it accessible for beginners while offering valuable insights for advanced users. So, my dear friends, as participants, you will leave with hands-on experience and a complete video project that you can use or refine further. So thank you. This was intro, and then in the next part, we are going to learn about Canva, how to use Canva and prepare, make thumbnails, beautiful thumbnails, attractive thumbnails, and then image assets, and then we are going to learn some other things also. So keep watching. Thank you. Thank you very much. So my dear friends, as I told you in my intro part that I will first going to take the session related to Canva, how to use Canva for preparing thumbnails and image assets and so many things we can do with the Canva, and it will be a learning experience, I think, and I think you will enjoy also. I hope you will enjoy, and we will be learning from each other. So now just for this image asset, suppose you have to prepare image asset for the video which you are going to make. So for that just क्या करना होगा कि हम पहले गूगल क्रोम खोलेंगे, गूगल क्रोम में जा करके फिर जैसे कि मेरा ये लॉगिन किया हुआ है, तो अब इस लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पर जा करके हम कैनवा लेंगे, ठीक है। और कैनवा, अगर आपके पास कैनवा नहीं है दोस्तों, तो आप जो कैनवा टाइप करेंगे वहाँ, कैनवा आने के बाद फिर इसको आप
डाउनलोड करना है आपको। ये फ्री में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे कि मेरा तो डाउनलोड किया हुआ है, तो ये जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप मेरा लॉगिन भी किया हुआ है, तो देख लीजिए दिखा रहा है मेरा वरुण कुमार झा, जो मेरा ईमेल आईडी है पर्सनल, तो उससे मैंने लॉगिन कर रखा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक बार आप ये जो इमेज एसेट्स बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन पार्ट पे जाएंगे। ये 16:9 फ्रेम रेट का है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए पहला स्लाइड हमको बनाना है। जैसे हम इसी ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमने डिस्कस किया था अभी इंट्रो पार्ट में, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट नोट था उसी का इमेज एसेट्स बनाते हैं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नोट, ड्यूरेशन मान लीजिए, और ये सब पहला स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको यहां से। फिर क्या करेंगे, हम कैनवा में जाएंगे, यहां इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे कि इसको ब्लॉक ये बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर दिया, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और कलर भी आप चूज कर सकते हैं दोस्तों इसमें, चाहे तो ये जैसे ब्लैक कलर है, आप चाहे तो कोई दूसरा कलर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ब्लू कलर ले लिया। ठीक है, अब इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। साइज क्योंकि हमारा 16:9 का जो फ्रेम है, तो इस फ्रेम में फिट बैठे वैसा साइज, तो हम इसको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर रहे हैं और ये साइज बड़ा होता चला जा रहा है। नाउ वी नीड टू चेक वेदर इट इज फिट और नॉट। सो अभी हम देखते हैं ये फिट हो गया। अभी और कुछ बढ़ाने की गुंजाइश है, लेकिन हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम आपको सिखाना चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड भी किस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड में खाली जगह आप देख सकते हैं, इधर है, इधर है। ठीक है, तो यहाँ बैकग्राउंड में खाली जगह पर क्लिक किया, राइट क्लिक करने से ये आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ गया। बैकग्राउंड कलर आ गया, फिर इसको लेफ्ट क्लिक करते हैं तो फिर ये बहुत सारा कलर ऑप्शंस आ जाता है। तो अब हमारा ये जो स्लाइड है इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो बैकग्राउंड मान लीजिए मैंने ये लाइम वाला ले लिया। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा तैयार। अब इसको क्या करेंगे, और भी कुछ इसमें एनिमेशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल ही आपको बताना चाहता हूं। तो अब इसको कैसे सेव करेंगे, तो जो शेयर बटन यहाँ पर शेयर जो दिखाई दे रहा है, शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पीडीएफ स्टैंडर्ड सजेस्टेड है, लेकिन हमको क्या करना है दोस्तों कि अगर हमको इमेज एसेट बनाना है तो जेपीजी करना है, अगर थंबनेल बनाना है तो ये पीएनजी करना है। तो अभी इमेज एसेट बना रहे हैं तो जेपीजी पर क्लिक किया, फिर ये जेपीजी सेलेक्ट हो गया, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। अब ये पर डाउनलोड होकर के ये पूछ रहा है ऑप्शन की कहां पर सेव करना है, तो मान लीजिए हम डेस्कटॉप में ही इसको सेव कर लेते हैं। इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं स्लाइड 1। ठीक है, स्लाइड 1, स्लाइड 1। और ये क्या है, तो टाइटल, ड्यूरेशन एटसेट्रा। ठीक है, ये सब है, ये टाइटल, ड्यूरेशन, ये सब इसका है, तो इसका नाम रख दिया हमने ताकि हमको पता रहे। अब इसको हम सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये अब डेस्कटॉप पे सेव हो गया, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं कहां सेव हुआ, तो यहां पर सेव हुआ। अब एक फोल्डर भी बना देते हैं दोस्तों, फोल्डर बना देते हैं। उस फोल्डर का नाम रख देते हैं क्रिएटिंग इंगेजिंग वीडियो। यही हमारा मतलब वर्कशॉप का उद्देश्य है ना, क्रिएटिंग इंगेजिंग वीडियो। तो ये इसका नाम दे दिया। अब इसमें हमने कॉन्सेप्ट नोट को भी रख लिया। और अच्छा, ये ओपन है इसीलिए बोल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको हम सेव कर सकते हैं। अब यहां पर इसको रख दिया क्रिएटिंग इंगेजिंग वीडियो फोल्डर में। स्लाइड 1 जो इमेज सेट बनाया उसको भी हमने यहां रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक और आपको बना के दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम यहां पर एक
नया लेंगे, ठीक है, एक इसको कट कर देते हैं, कट करके अब फिर से आपको फिर से समझाते हैं, क्योंकि बार बार देखेंगे तो समझेंगे, इसीलिए फिर से मैं कैनवा में जाता हूं, कैनवा में जाकर के फिर से यहाँ क्लिक करता हूं। वैसे अगर कैनवा आप डाउनलोड कर लेंगे तो बार बार ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, तो हमने ये आपको समझाने के ख्याल से ऐसा किया है। फिर यहाँ प्रेजेंटेशन ले लेंगे, प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करके फिर अब यहां पर हम दूसरा स्लाइड बनाएंगे। दूसरा स्लाइड बनाएंगे तो फिर हम दूसरा स्लाइड क्या बनाएंगे, जो हमारा इमेज एसेट्स दूसरा जो बनाना है, दूसरा स्लाइड वो यहां से लेंगे। तो कहां तक हमने किया था, ड्यूरेशन तक। अब मान लीजिए दूसरा स्लाइड जो है सो हम टारगेट ऑडियंस, ठीक है, इसका बना रहे हैं, ठीक है, दूसरा स्लाइड टारगेट ऑडियंस का बना रहे हैं। तो इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और फिर जो हमारा कैनवा वाला प्रेजेंटेशन है इसमें हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, और कलर भी आप कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लू कलर मैंने ले लिया। अब इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। साइज बढ़ा के हम फिर वही जो अभी पिछली बार किए थे वही सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब लगभग ठीक है। अब इसमें बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और इसको इस बार ये ले लेता हूं, येलो कलर का, ठीक है। अभी ये बैकग्राउंड कलर भी हो गया, और ये टारगेट ऑडियंस वाला स्लाइड तैयार हो गया, स्लाइड टू टारगेट ऑडियंस। अब इसको हम शेयर करके सेव करेंगे। शेयर किया, डाउनलोड किया, वही प्रोसेस है जो पिछली बार आपने देखा था। जेपीजी पर किया, डाउनलोड किया, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होकर के पूछ रहा है कहां करना है और इसका नाम क्या देना है। तो मैं इसका नाम देता हूं स्लाइड टू टारगेट ऑडियंस, ठीक है, स्लाइड टू टारगेट ऑडियंस। और इसको कहां सेव करना है, तो हमने ये फोल्डर बना रखा है क्रिएटिंग एंगेजिंग वीडियो, तो इसमें हम इसको सेव कर देते हैं। एक ऑलरेडी सेव किया हुआ है स्लाइड 1, स्लाइड 2 भी सेव हो गया वहां, ठीक है। अब हम मान लीजिए फिर दूसरा बनाना चाहते हैं। दूसरा बनाना चाहते हैं तो दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक नया स्लाइड लेंगे यहां, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रिपीटेडली हम देखते हैं तो सीख जाते हैं। तो फिर से हम यहां पर कैनवा टाइप करेंगे। कैनवा आ गया, क्लिक किया, फिर कैनवा विजुअल सूट फॉर एवरीवन, इसको क्लिक किया। यहां ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन है इसलिए दिखाई दे रहा है। अब फिर प्रेजेंटेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया। प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया कि जो तीसरा स्लाइड है, अब वहां से हम इसको ओपन कर लेते हैं, और तीसरा स्लाइड के लिए ऑब्जेक्टिव का तीसरा स्लाइड मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं। तो इसको कॉपी कर लिया यहां से। कॉपी करने के बाद फिर प्रेजेंटेशन में जाकर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको क्या करना है, बोल्ड कर देना है। फिर इसका कलर चूज करना है। इस बार मैं कलर थोड़ा इस तरीके का रखना चाहता हूं, और इसको साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। साइज में ये ध्यान रखना है दोस्तों कि साइज इतना ही बढ़ाएं जो कि विजिबल है, और जब वीडियो बनाए तो वीडियो में दिखाई पड़े। जैसे ये मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि साइड में जा रहा है। अब जो है सो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, कम कर दिया हमने, 56 कर दिया, 55 कर दिया। ये अभी साइज परफेक्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर डालेंगे। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए अब थोड़ा हम ये डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ये डाल के देखते हैं, जिसमें थोड़ा आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा बैकग्राउंड में कि बैकग्राउंड ऐसा चूज करें कि जो आपका जो फॉन्ट है और जो कलर है आपका जो आपने इसमें डाला है तो वो दिखाई दे, विजिबल हो। तो अब ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया, ये ऑब्जेक्टिव वाला स्लाइड हो गया। और इसको थोड़ा मैं ऑब्जेक्टिव ऊपर कर लिया, ठीक है। अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए फिर क्या करेंगे, वही शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ स्टैंडर्ड से जेपीजी कर देंगे, डाउनलोड करेंगे,
और फिर सेव करने का जब ऑप्शन आएगा ये, तो इसका रीनेमिंग कर देंगे स्लाइड 3, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्लाइड 3 ऑब्जेक्टिव है, और इसको हम यहां सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब ठीक इसी तरीके से मान लीजिए चौथा स्लाइड बनाना है, चौथा स्लाइड बनाना है, तो उसके लिए हम फिर से चौथी बार भी आपको फिर से ही ले चलते हैं उसी प्रोसेस से। ये बार बार इसलिए दोस्तों मैं कर रहा हूं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी कर रहा हूं। कैनवा में गए, कैनवा को ओपन किया, प्रेजेंटेशन को क्लिक किया, सेम प्रोसेस, और ये फिर यहां से हम स्लाइड 4 में सेशन ब्रेकडाउन सेशन 1 का ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको सेशन ब्रेकडाउन सेशन 1, ये स्लाइड 4 हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहां पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद बोल्ड कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे, बड़ा करके फिर देखेंगे कि कितना फिट हुआ। ये लगभग ठीक दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि इसका कलर चूज कर लेंगे। इस बार हम इसका कलर रखते हैं ये। ठीक है, अब ऐसा कलर रखते हैं तो इसका बैकग्राउंड में कैसा कलर होना चाहिए ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फिर बैकग्राउंड में जाकर के देखते हैं क्या है। ये देखिए, हरा देने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये देने से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, अब ये इसका येलो बैकग्राउंड अब इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो देख लीजिए सेशन ब्रेकडाउन, और इसमें पढ़ने में भी आ रहा है। वैसे आप चाहें तो इसका ब्लैक भी रख सकते हैं। इसका मान लीजिए हम चाहेंगे कि भाई ब्लैक रखें तो हम ब्लैक रख देंगे। ब्लैक रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि येलो बैकग्राउंड में ब्लैक बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ये हमने ब्लैक ही इसको रख लिया। ठीक है, अब इसको हम सेव करेंगे। तो कैसे सेव करेंगे, शेयर करेंगे, डाउनलोड करेंगे, फिर पीडीएफ स्टैंडर्ड को हटा करके जेपीजी करेंगे, जेपीजी के बाद डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और ये डाउनलोड हो गया। अब ये पूछ रहा है तो इसमें सेशन ब्रेकडाउन, तो सेशन स्लाइड 4 सेशन ब्रेकडाउन। ठीक है, स्लाइड 4 सेशन ब्रेकडाउन, स्लाइड 4 सेशन ब्रेकडाउन, सेशन 1, ये सेशन 1 का है। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर हम मेरे ख्याल से 4 स्लाइड बना दिया है। अगर जरूरी हो तो और भी बना सकते हैं हम, वरना मेरे ख्याल से इतना काफी है। चलिए एक और बना ही लेते हैं, 5वां स्लाइड भी बना लेते हैं। फिर से कैनवा में जाते हैं और प्रेजेंटेशन ले लेते हैं 16:9 फ्रेम का। इसको फिर हम सेशन 2 डिजाइनिंग विजुअल कंटेंट विथ कैनवा 1 आवर वाला ये ले लेते हैं। चलिए जितना आज बताएंगे सेशन में उतना तो इमेज एसेट्स बना ही लेते हैं। ठीक है, तो सेशन 2 का ही हमने बना लिया, ये कॉपी कर लिया यहां से। ठीक है, यहां पर पेस्ट कर दिया और यहां पर बोल्ड कर दिया और कलर ले लिया। कलर फिर से मैं ब्लू ले रहा हूं और इसको साइज बढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे फिट बैठता है। फिट बैठ गया। अब बैकग्राउंड लेते हैं इसका। अब ब्लू लिया है तो बैकग्राउंड फिर नेचुरली देखना पड़ेगा कि कौन सा बैकग्राउंड में ठीक दिखाई देता है, जिसमें थोड़ा दिखाई दे अच्छे से वो ले लेंगे। चलिए ये ठीक दिख रहा है यहाँ। ठीक है, ये थोड़ा और लाइट कर लेते हैं। हाँ, इसमें अच्छा दिख रहा है।
तो इसको हमने सेशन 2 ले लिया। सेशन 2 में क्या है, डिजाइनिंग विजुअल कंटेंट विथ कैनवा 1 आवर का, ठीक है, यही है। और थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ नया कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूं, ठीक है। डिजाइनिंग विजुअल कंटेंट विथ कैनवा। अब ये हो गया सेशन 2 का। इसको अब सेव करना है, तो सेव करना है तो फिर शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ को चेंज करके जेपीजी कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वही सेम प्रोसेस है। अब स्लाइड 5 और स्लाइड 5 में है क्या, तो ये भी देख लीजिए क्या है। ये है डिजाइनिंग विजुअल कंटेंट विथ कैनवा, ठीक है। डिजाइनिंग विजुअल कंटेंट, इसी को इमेज एसेट में बोल रहा था, विथ कैनवा, ठीक है। तो ये हमने फाइल का नाम दे दिया, इसको फिर यहीं पर सेव कर दिया। तो 5 स्लाइड हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कैनवा का किस यूज करके किस तरीके से आप थंबनेल बना सकते हैं, किस तरह से इमेज एसेट्स बना सकते हैं, आई होप दैट you have learned this, and when you will be doing and I will be showing you practically, this is just I am preparing video, and when you will watch this video and then you will have hands-on experience, then you will be learning more. तो मेरे ख्याल से इमेज एसेट्स मैंने बता दिया। अब रिकॉर्डिंग कैसे करें वो मैं बताने वाला हूं। तो मान लीजिए रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों, जैसे मेरे पास मान लीजिए आईफोन है, ठीक है, आईफोन है। अब देख लीजिए ये आईफोन है। तो इसमें क्या है कि मेरे पास मैंने एक डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए वॉइस रिकॉर्डर है, आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। तो ये वॉइस रिकॉर्डर है, इस पे मान लीजिए कुछ हम करते हैं ऑडियो क्लिप बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑडियो क्लिप बनाने के लिए करते हैं, तो मान लीजिए हमारा पहला स्लाइड है, ठीक है, पहला स्लाइड है स्लाइड 1, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। या नहीं तो स्लाइड 2 ले लेते हैं, ठीक है, चलिए स्लाइड 2, ओके फाइन। सो अब मैं यहां पर जो वॉइस रिकॉर्डर है इसको क्लिक कर रहा हूं दोस्तों, देख लीजिए इसको क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहां आ गया टैप टू नेम। अब ये टारगेट ऑडियंस है, तो टारगेट ऑडियंस मैंने इसको नाम दे दिया ऑडियो क्लिप का, टारगेट, ओके, टारगेट ऑडियंस, 1 सेकेंड, टारगेट ऑडियंस, ठीक है, इसका नाम दे दिया। फिर यहां रिकॉर्डिंग का जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको मैं रिकॉर्ड करके अब फिर डन करूंगा, यहां डन करूंगा तो ये सेव हो जाएगा और ये पूछेगा कि कहां भेजना है, तो मेल करके हम इसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो सिखाएंगे। अभी आप देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं अब इसको कर रहा हूं रिकॉर्ड, ठीक है। My dear friends, this is just a demo of how to record video, and I'm recording this target audience, slide number 2 for this video. Target audience हमारा कौन है? The first, educators looking to create instructional videos for online teaching. Second, content creators wanting to enhance their video production skills. Third, students interested in multimedia projects and presentations. And fourth, professionals who need to create engaging videos for marketing, training और business communication, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसको स्टॉप कर दिया यहाँ पे। अब इसको डन करते हैं। डन करते ही ये आ गया टारगेट ऑडियंस। देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो, आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर एबल टू सी, मैं कैमरे के सामने रख रहा हूं, मुझे नहीं पता है आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसको सुन के देखते हैं।
instructional videos for online teaching. Second, content creators wanting to enhance their video production skills. Third, students interested in multimedia projects and presentations. And fourth, professionals who need to create engaging videos for marketing, training और बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये हमने कर लिया. अब इसको हेलो फ्रेंड्स, आइए. ठीक है, तो ये अब जैसे ये तैयार हो गया, अब इसको हम मेल में भेज सकते हैं. तो कैसे भेजेंगे? तो जैसे मेरे पास ये आईफोन है, तो इसमें ये आइकॉन दिखा रहा है सेंड वाला दिखा रहा है. तो इसको सेंड करेंगे. सेंड करने के बाद ये शेयर का ऑप्शन दिखाता है, तो हम शेयर करेंगे. शेयर करने के बाद पूछता है शेयर ऑडियो MP3, शेयर वीडियो MP4. तो ये ऑडियो MP3 है, तो हम शेयर ऑडियो MP3 कर रहे हैं. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कैसे शेयर करेंगे. तो हमारे जैसे आईफोन टू आईफोन करना है, या मान लीजिए आईफोन से मैक प्रो में करना है, तो इजी होता है, अपना वो एयर ड्रॉप कर सकते हैं. लेकिन अभी हम बैठे हैं डेस्कटॉप क्लास, ऑफिस में बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे कि मेल करेंगे. ठीक है, तभी जीमेल वाला ऑप्शन है, इसको जीमेल पर सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जीमेल पर सेलेक्ट करके और हमने क्या किया कि मेल का ऑप्शन चुना. सब्जेक्ट में हमने लिख दिया ऑडियो क्लिप और पता कैसे चलेगा ऑडियो क्लिप कौन सा है? इसके लिए मैंने क्या कर दिया, लिख दिया टारगेट ऑडियंस. तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑडियो क्लिप है. ठीक है, एंड इसको हम क्या करेंगे कि भेज देंगे. ठीक है, इसको हम मेल कर देंगे. अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसमें. ये डन हो गया, चला गया. अभी मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि कैसे इसको फिर. तो अब हम मेल को ओपन करेंगे. ठीक है, मेल को ओपन करते हैं. अब ठीक है ना. अभी तक आया नहीं है. नहीं, इससे अच्छा, इससे सेंड किया इस मेल से, तो सेंड मेल में दिखाई देगा. करेक्ट. ऑडियो क्लिप देख लीजिए, आप दिखाई दे रहा है ऑडियो क्लिप टारगेट ऑडियंस. ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे. इसको यहां से हम डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है, अब इसको डाउनलोड किया. वीडियो क्रिएशन इसका नाम है, हम इसका नाम दे देंगे टारगेट ऑडियंस, ताकि हमको पता चले कि जब ऑडिटिंग करेंगे तो कहां इसको फिट करना है. टारगेट ऑडियंस. ठीक है, स्लाइड 2 टारगेट ऑडियंस स्लाइड 2 या स्लाइड 2 टारगेट ऑडियंस, कुछ भी कर दें. अब यहां पे MP3 ऑडियो फाइल है और इसको सेव करना है क्रिएटिंग एंगेजिंग वीडियो वाले फोल्डर में. तो इसको वहां हमने सेव कर लिया. ठीक है, अब ये सेव हो गया. अब चेक कर लेते हैं, यहां से मैं लॉग आउट होता हूं. ठीक है, और फिर मैं देखता हूं कि वहां सेव हुआ कि नहीं. तो ये देखिए, आप यहां पर देखिए टारगेट ऑडियंस, ये वीडियो सेव हो गया. अब हम जब दोस्तों इसका वीडियो बनाएंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, तो अभी तो हमने क्या किया, अब तक हमने क्या किया कि कैनवा से इमेज एसेट्स बनाना सीख लिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग सीख लिया. ठीक है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग फिर इसको MP3 फाइल में कैसे करके कैसे भेजते हैं, कैसे सेव करते हैं, वो सीख लिया. अब इन सारी चीजों के बाद जब हम माइक्रोसॉफ्ट मूवी मेकर प्रो के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में इन सब चीजों का उपयोग करते, जो भी इमेज एसेट्स आपने बनाया है, जो भी PPT आपने बनाया है, जो भी ऑडियो क्लिप्स आपने बनाया है, उस सब की मदद से उसको कैसे अरेंज करके, उसका इमेज, उसका वीडियो, उसका ऑडियो सब अरेंज करके फिर कैसे उसमें बैकग्राउंड लगाएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, वो सब करना सीखेंगे. किस तरीके से ट्रिमिंग करेंगे ऑडियो की, किस तरह से वीडियो की ट्रिमिंग करेंगे, अनवांटेड चीजों को हटाएंगे. ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में सीखेंगे. आज के लिए बस इतना ही. हम आपसे लेते हैं विदा. मिलते हैं क्रिएटिंग एंगेजिंग वीडियो पार्ट 2 के साथ. तब तक के लिए सब बखैर. Thank you for watching. If you found this video helpful, give it a thumbs up and share it with your friends. Subscribe to AI Insiders for more valuable insights. See you in part 2. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो
तो प्यारे दोस्तों, इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अधिक जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए AI इनसाइडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।